Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and walaikum salam, everyone. So we are starting with Poetics by Aristotle. So Poetics जो है इसका एक बड़ा role है as far as criticism is concerned, as far as the literature is concerned, as far as drama is concerned. So Poetics is linked with all those. So that is a work by Aristotle which got maximum fame, or it is by Aristotle, who is in fact a Greek philosopher, and he was a polymath during classical period in ancient Greece. Plato was his teacher, and he was the founder of Lyceum, जो कि एक स्कूल था फिलोसफी का, और उससे ये अरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन स्टार्ट हुई. इसका पढ़ाने का तरीका बड़ा सिंपल सा था, like the people used to sit anywhere and he used to start teaching. So it was a wonderful technique that he provided. Or he, like Aristotle, was well versed in so many subjects like zoology, biology, physics, metaphysics, mathematics, logics, ethics, government, politics, economics, linguistics, psychology, rhetoric, music, theater, aesthetics, ethics, and poetry. So all these things were in his domain. So you can get to know that since he was talking about philosophy of these things, like topic के बारे में, subject को जानना, वो कोई expertise नहीं है. लेकिन if you know the philosophy of that thing, that is real expertise. So not only that he was a philosopher, but also he gave his philosophies on certain subjects. So poetics जो है, इसमें he discusses poetry, जिसको वो एक means के तौर पे बताता है कि mimesis, which means imitation, कि जिसमें imitations की जाती है. बेसिकली इसका जो उस्ताद था प्लेटो, ही वाज अगेंस्ट पोइट्स. सो जो है अरिस्टोटल, इसने अपने उस्ताद को डिफाई किया इस हवाले से, और उसको उसके मुकाबले में पोइट्री को इसने उसकी अपॉलॉजी की, एक रिड्रेस किया पोइट्री का. और ये कहता है कि बाय मींस ऑफ लैंग्वेज, रिदम एंड हार्मनी वी हैव पोइट्री इन फ्रंट ऑफ अस. So, as creatures who thrive on imitation, we are naturally drawn to poetry. कि imitation का एक रोल है, and we have a natural tendency towards poetry which compels us, और हम poetry की तरफ खींचे चले जाते हैं. So in particular he focuses on tragedy, and जिसमें वो dramatic और narrative form के मुकाबले में like he discusses them both, and also he talks about the agents in tragedy who are better than us. यानी उसके मुकाबले में, उसके मुताबिक एक बंदा जो सुप्रीम एक फॉर्चून के लेवल पे है, सोशल ऑर्डर में ऊपर है, एंड हमसे एक आम इंसान से बेहतर है. सो ट्रेजेडी जो है, इसके मुताबिक इट सर्व्स टू arouse the feelings or emotions of pity and fear, and to effect a catharsis of these emotions. कि उन emotions का एक catharsis भी है जो कि poetics या इसके जरिए हुआ करता है. So what we then see here is कि इसमें basically जो इसकी definition है, उसमें कहते हैं कि जो tragedy है, that is imitation of an action that is serious, complete in itself, having certain magnitude or grandeur, और उसमें इमोशंस हैं पिटी फियर के, जो कि कैथारसिस की तरफ लेके जाते हैं. तो ये बेसिकली एक सीरियस प्ले है, यानी ट्रेजेडी एक सीरियस प्ले होता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, और इसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस है. इसमें एक डाउनफॉल दिखाया जाता है, एक बंदे का डाउनफॉल, जो किसी खास चीज जिससे हमार्शिया, मिसिंग द मार्क और एरर ऑफ जजमेंट कहा जाता है, उसके जरिए एक बंदा अपनी फॉर्चून या फॉर्चुनेट पोजीशन से अनफॉर्चुनेट पोजीशन की तरफ आता है. Aristotle divides tragedy into 6 different parts, ranking them in order from most important to least important. So, सबसे important उसके लिए है mythos, that is plot, then character, then thought, then diction, which is language, then melody, and then spectacle. Spectacle क्या है? That is scene, that is the background basically. So Greeks जो play करते थे, perform, they had to perform so many plays in a day. So उनके लिए हर एक प्ले की सेटिंग बनाना मुश्किल होता था. तो उसके मुताबिक वो जो सेटिंग है, जो स्पेक्टिकल, जो नज़ारा है, बेसिकली वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है.
लेकिन सबसे important element is plot, which we cannot miss out. So first essential to create a good tragedy is that it should maintain unity of plot, जिसको शेक्सपियर डिफाई करता है. So he talks about three dramatic unities: unity of time, unity of place, and unity of action. So unity of time क्या है कि तमाम का तमाम जो प्ले परफॉर्म हो रहा है वो इतना प्रोबेबल हो कि उतने टाइम के अंदर वो यानी उसमें वो इतने टाइम में वो सब कुछ हो सके जो कि उस प्ले में दिखाया गया. यूनिटी ऑफ एक्शन कि एक्शन उतना हो, इस तरह का हो जो कि इतने टाइम के हवाले से या इतने वो जो प्ले का मैग्नीट्यूड है उस हवाले से वो चीज वो एक्शन पॉसिबल हो. प्लेस वो कि कोई किसी प्लेस से आ रहा है या कहीं को जा रहा है तो वो आना जाना उस टाइम के अंदर पॉसिबल होता हो, मुमकिन हो. सो शेक्सपियर जो है violates these unities और मॉडर्न प्लेस में तो यूनिटीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया. सो ये जो यूनिटीज थी he was very much serious about them और इसके नजदीक जो यूनिटी है that is very integral part of a plot. और इस हवाले से जो इसके नजदीक जो आइडियल ट्रेजेडी है जिसको वो कोट करता है दैट इज नन अदर देन इडिपस रेक्स. तो वो कहता है कि वो एक सबसे अच्छी एक ट्रेजेडी है जो कि अरिस्टोटल की बताई हुई डेफिनेशंस पे पूरा उतरती है. सो प्लॉट जो है उसके अंदर वी हैव पैरिपीशिया जिसे रिवर्सल कहा जाता है एंड एनाग्नोसिस जो कि रिकॉग्निशन है व्हिच मींस डिस्कवरी. So these elements work best when they're made an integral part of the plot. जब ये प्लॉट का हिस्सा बनते हैं तो ये प्लॉट को मजीद ब्यूटिफाई करते हैं और अरिस्टोटल के मुताबिक ये दो स्कीम्स होनी चाहिए. रिवर्सल मींस सिचुएशन का रिवर्सल, यानी क्या से क्या हो जाना, कुछ का कुछ हो जाना. और डिस्कवरी यानी some anagnosis या कुछ ऐसी डिस्कवरी that brings a major change to the plot, to the fortune of the hero, to the characters, to the story. तो इडिपस में हम देखते हैं रिवर्सल होती है उसकी सिचुएशन, बादशाह से वो क्या और एक ऑस्ट्रेसाइज्ड पर्सन बन जाता है, उसे निकाल दिया जाता है. और जो डिस्कवरी है कि लाइक द गॉड commands us to expel from the land of Thebes an old defilement that it seems we shelter. So उसको पता नहीं होता कि वो old defilement वो खुद है. So discovery जो है that is very horrible in that. So कहते हैं कि plot consists of a hero going from happiness to misery. कि जो tragic plot है, tragedy का plot, उसमें जो hero है वो happiness से miseries की तरफ जाता है. Like वो happiness से misery की तरफ travel करता है और उसका जो he is fortunate in the beginning और वो एक अच्छी social standing पे है, but then he has a downfall. Then heroes should be portrayed consistently in good light. Thought the poet should also the poet should also remain true to what we know of the character. So इसमें क्या है कि जो poet है इसको भी यानी इस चीज के साथ हम आहंग रहना चाहिए कि हमें कैरेक्टर के बारे में आइडिया है. लाइक इडिपस रेक्स जो है that is not only written by or produced by Sophocles, it is a myth. It was a long folk tale जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा. इलेक्ट्रा पे बहुत सारे लोगों ने लिखा. So audience already knows कि स्टोरी क्या है. What matters is the plot, कि प्लॉट के अंदर चेंज कैसे आता है जो कि उस स्टोरी को देख के उन्हें मजा आएगा. So the mystery should be the misery should be the result of some hamartia or error on the part of hero. So there has to be some error of judgment, some hamartia, एक tragic flaw होना चाहिए उसके अंदर जो कि उसके downfall का सबब बनता है. फिर a tragic plot must always involve some sort of tragic deed which can be done or left undone. कुछ ऐसी tragic deed होनी चाहिए एक tragic plot में, या तो वो की गई हो या उसे करते हुए यानी avert कर दिया गया हो. कि जिस तरह इडिपस में अगेन के इडिपस ने जो किया वो उसकी ट्रैजिक डीड्स थी, या वो इसको मारते मारते बचा लिया गया, दैट वाज आल्सो अ ट्रैजिक डीड जो कि जब ये बच्चा था. एंड दिस डीड कैन बी अप्रोच्ड ईदर विद फुल नॉलेज और इन इग्नोरेंस. तो अगेन इट वाज रिजल्ट ऑफ दैट इग्नोरेंस के जो कास्टा मैरिड हर ओन बेबी
realizing कि हमने इसको मार दिया, but he was undead, he was alive. Aristotle discusses thought and diction and then moves on to address epic poetry. So उसके लिए वो he talks about thought, the story, and diction, the language, and then he talks about epic poetry. So epic poetry is similar to tragedy in many ways, though it is generally longer, more fantastic, and deals with the greater scope of action. So उसके मुताबिक जो epic poetry है वो fantastic है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा adventures हैं, उसमें ज़्यादा length पाई जाती है और एक greater scope है उसमें action का. After addressing some problems of criticism, Aristotle argues that tragedy is superior to epic poetry. तो उसके मुताबिक tragedy ज़्यादा superior है epic से अगर हम इन दोनों को आपस में compare करें, and then he gives logic. He concludes by tackling the question of whether the epic or tragic form is higher. कि इन दोनों में कौन सी form higher है, epic or tragic या tragedy. Most critics of his time argued that tragedy was for an inferior audience that required the gesture of performers, while epic poetry was for the cultivated audience which could filter narrative through their own imaginations. तो उस जमाने के लोग क्या सोचते थे कि जो epic है वो ज़्यादा important है क्योंकि elite class उसको सुनती है, लोगों को अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, imagination use करनी पड़ती है, और ट्रेजेडी सिर्फ दिखाई जाती है तो वो कोई भी उसको देख सकता है. So this was their attack. In reply, Aristotle notes that epic recitation can be marred by overdone gesticulation in same way as a tragedy. Moreover, tragedy, like poetry, can produce its effect without action. Its power is in the mere reading. So वो क्या कहता है कि जो ट्रेजेडी है ये सिर्फ एक्शन पे बेस्ड नहीं है. क्यों हायर है, क्यों बेहतर है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं है, इट कैन बी रेड एज वेल. सो रीडिंग अ ट्रेजेडी इज एज लाइक बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट एज द वॉचिंग ऑफ इट. हाँ, एपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका मजा उसके सुनने में है. लोग, बहुत सारे लोग उसको एपिक को बयान कर सकते हैं, सुना सकते हैं, उनके सुनाने में वो बात नहीं आ सकती जो कि एपिक को बयान करने में आ सकती है. सो एपिक का बयान करना जो है उसको लिखने में वो मजा नहीं आ सकता, सॉरी. लेकिन ट्रेजेडी जो है वो देखने में, परफॉर्मेंस जो है उसकी परफॉर्मेंस में, दिखने में या उसको बयान करने में यानी पढ़ने में, इसका वो सेम इफेक्ट है और ये अपना मीनिंग जो है वो बड़ा इजीली कन्वे करती है. So Aristotle argues that tragedy is in fact superior to epic. इसके मुताबिक tragedy जो है वो superior है, and because it has all the epic elements as well as the spectacle and music to provide an indulgent pleasure to the audience. So ये audience को बांध के रखती है. Tragedy जो है, epic tragedy जो है उसमें, then despite the arguments for other critics is higher art for Aristotle. और ये बेशक लोगों ने उस जमाने के उस पर तनकीद की, बाद वालों ने भी की, but still according to Aristotle tragedy is higher than epic poetry. जी फिर मिस नसीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. I want to add here something that there can be tragedy in an epic, but not an epic in tragedy. जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है. एपिक के अंदर ट्रेजेडी हो सकती है लेकिन ट्रेजेडी के अंदर एपिक लाना नामुमकिन है, वो पॉसिबल नहीं है. So from Aristotle we are now shifting to Jazz by Toni Morrison. Jazz is a drama of Harlem Renaissance period. We'll discuss what Harlem Renaissance is. So ये जो है chronological, इसकी summary में आज आपको discuss करूंगा आपके साथ. I'll be sending the links to you or files. You can see the summary which is in real order, क्योंकि stream of consciousness में लिखा गया है. So इसमें characters बहुत सारे हैं, तो इस तरह उनको understand करना हमारे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. So बाद में जो files आपको भेजी जाएंगी, you can afterwards read them. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो.
कैरेक्टर्स की लिस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन आई विल गो साइड बाय साइड, या मैं इसमें आपके लिए what I can do is I can make another slide जिसमें मैं आपके सामने सारे एक्टर्स लिखता रहता हूँ. So that can be like this. So this is an empty slide that we have, and I'm going to write some characters. So I start with Colonel Wordsworth. So we have first character. इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है ऑलरेडी, आगे आप उसको देख सकते हैं. तो फर्स्ट लेवल पे वी हैव कर्नल वर्ड्सवर्थ. अब ये जो प्ले है, दैट इज बाय द ब्लैक, ऑफ द ब्लैक, फॉर द ब्लैक, जिस तरह डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. सो ये इसी तरह ये लिखी गई बाय टोनी मॉरिसन, जो कि एक ब्लैक, एक नीग्रो है, और उसने ये ब्लैक्स के बारे में लिखी. कैरेक्टर्स भी इसमें उसने वही डाले जो कि ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो कि उसने देखे या उसने सेंस किए या उसने एक्सपीरियंस किए. ओके, सो कर्नल वर्ड्सवर्थ जो है उसकी एक डॉटर है, हर नेम इज वेरा. सो वेरा जो है, शी इज कर्नल वर्ड्सवर्थ्स डॉटर, लेकिन हेनरी लेस्ट्रॉय इज a slave, एक ब्लैक स्लेव है जो कर्नल वर्ड्सवर्थ के पास काम करता है. कर्नल वर्ड्सवर्थ इज ऑफ कोर्स अ व्हाइट मैन. सिमिलरली वेरा जो है, वेरा भी एक व्हाइट गर्ल है. तो उसकी बेटी जो है उसके गुलाम के साथ उसका अफेयर हो जाता है, एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट. इस चीज का जब कर्नल वर्ड्सवर्थ को पता चलता है, तो वो ट्रू बेले, जो कि उसकी एक और हबशी गुलाम होती है, मुलाजमा, उसके साथ वेरा को घर से निकाल देता है. सो वेरा, उसकी बेटी जो है, उसे घर से निकाल दिया गया. हेनरी को जॉब से निकाल दिया जाता है. फिर क्या होता है कि ट्रू बेले जो है एक अरसे तक सर्व करती है वेरा को. किसी अननोन जगह पे रहते हैं ये. हेनरी कहीं और भेज दिया जाता है, चला जाता है. तो वेरा गिव्स बर्थ टू गोल्डन ग्रे. नाम गोल्डन ग्रे इसलिए होता है क्योंकि ही इज हैविंग बोथ स्किन कलर्स, और या उसके बाल जो है वो गोल्डन होते हैं अपनी माँ की तरह. जो उसकी टोन होती है, फेशियल टोन या बॉडी टोन, वो जो कॉम्प्लेक्शन कह लें, वो बेसिकली ग्रे होता है अपने फादर की तरह. सो उसका नाम गोल्डन ग्रे रखा जाता है. ट्रू बेले गोल्डन ग्रे को जाने से पहले बता देती है उसकी रियलिटी. ठीक है, गोल्डन ग्रे जाता है अपने बाप को ढूंढने के लिए, क्योंकि हेनरी लेस्ट्रॉय है. उसे हंटर भी कहा जाता है, उसे हंटर भी कहा जाता है, लेस्ट्रॉय भी कहा जाता है इस नॉवल के अंदर. सो मीनवाइल ही सीज अ प्रेग्नेंट वुमन. जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको वो शी इज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ बेबी, तो उसे करीबी फॉर्म में ले आता है. सो फॉर्म में वहां पे उसे एक्टन नामी एक लड़का मिलता है जो उस फॉर्म पे हेल्प करता है, और वो जो फॉर्म है बेसिकली दैट बिलोंग्स टू हेनरी लेस्ट्रॉय, यानी वो एक्सीडेंटली अपने बाप के ही फॉर्म में ले आता है. When Wilde gives birth to a baby, so उसी लेबर पेन में वो लेस्ट्रॉय, हेनरी लेस्ट्रॉय को काट लेती है. ये वो टाइम होता है जब बेटा और बाप एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, और इसी बीच में वो उसको काट लेती है, तो इसका नाम वाइल्ड रखा जाता है. खैर, अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती है. ट्रू बेले जो है उसकी एक बेटी होती है रोज डियर. रोज डियर जो है अपने हस्बैंड के हवाले से बड़ी मुफलिसी में होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड घर पे तवज्जो नहीं देता, आता भी नहीं है, ना कोई खर्चा पानी देता है. सो ट्रू बेले जो वापस जाती है अपने गांव में, तो रोज डियर अपने बच्चे उसके हवाले करके वहां से, यानी कुएं में छलांग मार देती है, मर जाती है. रोज डियर की एक बेटी होती है वायलेट. तो वायलेट और ये बच्चे जो होते हैं, इनको भेज दिया जाता है आसपास के हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जहाँ पे ये हार्वेस्ट करते हैं और पैसे कमा के लाते हैं. सो वायलेट जब बड़ी होती है, सो वायलेट की मुलाकात होती है जो ट्रेस के साथ. जो ट्रेस अपना नाम ट्रेस खुद रखता है क्योंकि ही इज ट्रेसिंग हिज पेरेंट्स, ही डज नॉट नो उसके पेरेंट्स कौन थे. सो जो ट्रेस और वायलेट जो हैं वो वहां से
रॉयट्स की वजह से, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के रॉयट्स से, वहां से निकलते हैं और एक माइग्रेशन करते हैं, सिटी की तरफ आते हैं। तो सिटी में ये मैनहट्टन यानी न्यूयॉर्क में रहना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, और जो ट्रेस, जो कि एक सेल्समैन होता है, यानी कॉस्मेटिक्स सेल करता है, तो वो जाता है मुख्तलिफ घरों में। तो वहां पे लाइक मुख्तलिफ लोगों के घर में जाके विजिट करके वो कॉस्मेटिक्स बेचा करता है। और वॉयलेट जो है, शी इज अनलाइसेंस्ड हेयर ड्रेसर। अनलाइसेंस्ड क्यों है वो? क्योंकि शी इज बेसिकली नॉट स्किल्ड, शी इज नॉट हैविंग दोज लाइक व्हाट यू कैन से के दैट पासपोर्ट इन अ वे, कि जिस तरह आप लोग यहाँ पे बाहर के मुल्कों में जाते हैं इलीगल और आपको कम पैसे पे जॉब करनी पड़ती है। सिमिलरली, सिंस शी इज ब्लैक और शी कम्स टू वाइट कम्युनिटी, शी इज नॉट स्किल्ड इनफ, और उसके पास प्रॉपर शहरी हकूक नहीं है, तो उस वजह से वो अच्छी अपनी शॉप वगैरह इस तरह की चीज एस्टेब्लिश नहीं कर सकती। तो वो लोगों के घरों में जाके ख्वातीन के जो हैं बाल वगैरह उनको ड्रेस करती है, काटती है। जो है इस अपनी सेल्समैनशिप के इस बीच में, ही गोज टू द हाउस ऑफ एलिस मैनफ्रेड। एलिस मैनफ्रेड एक खातून है जो कि रॉयट्स में इसकी बहन का घर जल गया, और ये उसकी बेटी डॉर्कस को, यानी अपनी भांजी को अपने साथ ले आई। अब इसकी भांजी है डॉर्कस, ये इसको उसने जानबूझ के अनअट्रैक्टिव रखा, उसके बाल छोटे रखे, उसको खुले लिबास पहनाए कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो डॉर्कस की मुलाकात होती है जो ट्रेस से एलिस मैनफ्रेड के घर पे, जब वो डोर टू डोर सामान बेचने आता है। इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। सो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये मिलना शुरू करते हैं, और एक मेलवनी जो कि एक खातून है, उसके रूम को, उसके ऊपर पोर्शन को ये रेंट पे लेते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए टुगेदर। आहिस्ता आहिस्ता डॉर्कस बोर हो जाती है जो से, क्योंकि वो उसमें एज में बड़ा है उससे, और जो उसको देखता है एक जगह पे एक और लड़के के साथ, तो ये उसे गोली मार देता है, और डॉर्कस की वहां डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है वॉयलेट वॉयलेट क्या करती है, वहां से उसके, जब उसे पता चलता है तो वो उसके जाती है घर पे, यानी उस जहाँ पे उसका जनाजा होता है, फ्यूनरल होता है, और ये जाके स्लैश करने की कोशिश करती है उसकी डेड बॉडी को। उसके बाद इसका नाम वॉयलेंट रख दिया जाता है इस बिहेवियर पे। और फिर जब उसे पता लगता है हस्बैंड की इनफाइडेलिटी का, मीन वाइल वो ये होता है कि जब हस्बैंड उसे लिफ्ट नहीं कराता तो वो कुछ बर्ड्स पाल लेती है, उनके साथ बातें करती रहती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बर्ड्स को भी आजाद कर देती है, जिसमें उसका एक फेवरेट पैरट भी होता है। उसके बाद वो एब्सेंट माइंडेड हो जाती है, कभी सड़कों के दरमियान बैठ जाएगी, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कभी किसी का बच्चा उठा लेगी और इस पर इल्जाम लग जाएगा कि अगवा करके लेके जा रही है, कोई इसकी सर्विसेज नहीं लेता, कोई इसको घर नहीं बुलाता। और बेसिकली इसमें ये होता है कि ये क्यों एक दूसरे से ज्यादा दूर हुए होते हैं, एक तो डॉर्कस की वजह से, और उससे पहले इसके मिस कैरेजेस होते हैं उस वजह से, क्योंकि इनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हो पाती। बहरहाल जो है फिर एलिस मैनफ्रेड से जो वॉयलेट उसकी पिक्चर लेती है डॉर्कस की, और अपने घर में सजा लेती है। उससे दोनों को गिल्ट भी होता है और इंजोम्निक भी होते हैं दोनों। फिर फेलिस, एक लड़की जो कि डॉर्कस की फ्रेंड होती है, वो आके बताती है कि बेसिकली क्या हुआ, कि उसको गोली लगी लेकिन वो तुमने नहीं मारी, मतलब गोली तो तुमने मारी बेसिकली, लेकिन उसे वो मर नहीं सकती थी, उसके शोल्डर पे लगी। और इन द एंड ये क्या हुआ उसको, कि उसने जानबूझ के एम्बुलेंस को नहीं आने दिया, कॉल नहीं करने दिया, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। तो फेलिस की वजह से ये दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आते हैं। ओके, थैंक्स उसामा फॉर करेक्टिंग। कैप्टन उसका एक बॉयफ्रेंड है, और ये ऑनर होता है, यस, जो कि उसके वो जो बच्चा जो कि लेस्ट्रॉय के उस घर पे मुलाजिम होता है। ओके, सो नाउ गोइंग फर्दर, आई होप यू हैव डन विद दैट। सो इसको हम यहाँ से निकालते हैं।
तो जो जैज है बेसिकली 1992 का हिस्टोरिकल नॉवल है, पुलिट्जर प्राइज और नोबेल प्राइज विनर ऑथर जो है टोनी मॉरिसन का। सो शी रोट इट एंड इट इज अबाउट हार्लेम। 1920s के सीन्स हैं जो इसमें दिखाए गए, जिसमें ब्लैक एंड वाइट रॉयट्स और वो जो नरेशन उसने जिस साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की माइग्रेशन, इन सारी चीजों को उसने डिस्कस किया। सो दिस इज बेसिकली द प्लॉट। सो रिटन इन क्रोनोलॉजिकल वे। इसमें एक और चीज जो है, जो टाइटल जैज, जैज म्यूजिक जो है दैट इज एवरीवेयर। म्यूजिक जो है ये डेवलप भी जैज म्यूजिक ब्लैक कम्युनिटी ने किया, तो उनकी वजह से इट इज सीन एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक अ कैरेक्टर, जो कि एक तरह से बैकग्राउंड सेट कर रहा है पूरे नॉवल का। और चूंकि जैज म्यूजिक हर जगह पे था रिलेटेड विद ब्लैक्स, तो ये उस हवाले से इंपॉर्टेंट है। वेरा लुइस ग्रे और हेनरी लेस्ट्रॉय, इनका आपस का रिलेशन बनता है। वेरा का फादर कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे उसको वहां से निकाल देता है, वेरा एक्सपेल हो जाती है अपने घर से, ट्रू बेले को उसके साथ भेजा जाता है। वेरा का जो कजन है, बेटा है, वो गोल्डन ग्रे है। जब ट्रू बेले उससे बताती है तो ही गोज टू फाइंड हर हिज फादर, और वहां पे ही मीट्स अ प्रेग्नेंट वुमन, ही टेक्स हर टू शेल्टर, जो हमने अभी डिस्कस किया। फादर एंड सन मीट एंड द वुमन इन लेबर पेन बाइट्स एंड इज नेम्ड एज वाइल्ड, तो उसका नाम वाइल्ड रखा जाता है। नाउ दिस बेबी is not actually Joe Trace, यहाँ पे लिखा Joe Trace है, लेकिन this may not be Joe Trace, though it is said कि शक जाता है कि शायद ये Joe Trace हो। So basically African और American whites start होते हैं, यानी जो American whites हैं और African blacks जो कि वहाँ पे आए होते हैं, उनके आपस के whites हैं जो कि start होते हैं। और इसी मिड में वॉयलेट जो है, जो कि ट्रू बेल की डॉटर रोज डियर की बेटी है, यानी ट्रू बेल की नवासी है, वो अब बड़ी हो चुकी है और वो जाती है 18 ईयर्स ओल्ड की जब है कॉटन हार्वेस्ट पे। इसके बीच में रोज डियर अपनी माँ के आने के बाद जान दे देती है अपनी। वहां पे इसकी मुलाकात जो ट्रेस से होती है। जब दरख्त के नीचे थक के बैठी होती है तो ऊपर से गिरता है ट्री ब्रांच टूटने पे, मोहब्बत हो जाती है दोनों को, ये शादी करते हैं और वहां से फिर माइग्रेट करते हैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क के अंदर। जो एक कॉस्मेटिक सेल्समैन बन जाता है और वॉयलेट बाल काटती है लोगों के। मीनवाइल वॉयलेट के होते हैं मिसकैरेजेस, जिसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती सेंस, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एलिस मैनफ्रेड जो है वो अपनी नीस डॉर्कास को लेके आती है हार्लेम में, चूंकि उसकी बहन का घर जल जाता है और उन राइट्स में, यानी जो अफ्रीकन और अमेरिकन की लड़ाई, यानी वाइट्स और ब्लैक्स की जो तजादात होते हैं नस्ली, उसमें आग लगा दी जाती है डॉर्कस के घर को। लकीली वो अपने नेबर्स के घर होती है तो वो बच जाती है। तो एलिस उसको ले आती है वापस, क्योंकि एलिस इज लिविंग इन न्यूयॉर्क, सो उसको अपने साथ लाती है। फिर उसके एफर्ट्स हैं उसे रेस्ट्रेन करने की, वो उसको लोगों के साथ सोशली मिक्सअप नहीं होने देती। बहरहाल डॉर्कस जो है मिलती है जो से, दे स्टार्ट लविंग ईच अदर। फिर डॉर्कस के जब इमोशंस चेंज होते हैं तो जो उसे शूट कर देता है, डॉर्कस क्लब के अंदर मर जाती है। वॉयलेट जो है वो उसके ऊपर उसकी बॉडी को स्लैश करने की कोशिश करती है, उससे कतई ताल्लुक कर दिया जाता है। फिर इन दोनों मियां बीवी में गिल्ट होता है और उस गिल्ट को फाइनली फेलिस सॉल्व करती है। सो यहाँ पे वी हैव हार्लेम रेनेसेंस, वन इंपॉर्टेंट थीम। हार्लेम रेनेसेंस ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल सोशल आर्टिस्टिक एक्सप्लोजन था, जो कि हार्लेम मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 1920s में ये स्टार्ट हुआ। इसे न्यू नीग्रो मूवमेंट भी कहा जाता था। ये बेसिकली क्या थी, एक न्यू नीग्रो एंथोलॉजी थी 1925 की बाय एलन लॉक, जिसने इसको एडिट किया। इसमें अमेरिकन अफ्रीकन कल्चर अक्रॉस अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज और नॉर्थ ईस्ट मिड वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में इस चीज को लिखा गया, उनके कल्चर को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, उनके फोकलोर्स, कहानियां, स्टोरीज, मिथ्स, उनको बयान किया गया। It also included music, it also included arts, fine arts, sketching, drawing, painting. ये सारी जो एक तरह से नया नॉलेज जो ट्रांसलेट होके आया या डेवलप हुआ एक नई कम्युनिटी की तरफ से अमेरिका में,
It is named as Renaissance, yani revival of learning. Great Migration is a bigger theme. क्यों? क्योंकि तकरीबन 6 मिलियन अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, खासतौर पे रूरल सदर्न स्टेट से इन्होंने माइग्रेट किया अर्बन एरियाज की तरफ. क्यों आए? क्योंकि ये 1916 से 1970 तक ये 6 मिलियन लोग आते रहे, क्योंकि गांव में लॉलेसनेस ज्यादा थी और साउथ या सदर्न साइड्स वहां पे इस तरह के कत्लो गारत या ये रेसिज्म ज्यादा था. तो जब ये लोग आए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लाइक मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के अंदर, तो वहां पे कदरे हालात बेहतर थे. दो अभी इनके पास वो वाले राइट्स नहीं थे, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया साउथ साइड से नॉर्थ साइड में. थीम्स है इसमें मदरहुड, जो कि हम देखते हैं ट्रू बेली के सामने, वेरा के हवाले से, वॉयलेट के हवाले से जो कि मदर नहीं बन सकी बट शी फेल्ट इट. वायलेंस हम देखते हैं वॉयलेट के एटीट्यूड के अंदर और उस वाइल्ड खातून के अंदर जो कि काट लेती है हेनरी लेस्ट्रॉय को. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये तो पूरे नॉवल में चलता है. माइग्रेशन इज वन ऑफ द मेजर थीम्स. ऑर्फन्स, जिस तरह गोल्डन ग्रे इज एन ऑर्फन, सिमिलरली जो ट्रेस इज आल्सो एन ऑर्फन. म्यूजिक जो जैज है दैट वर्क्स लाइक अ कैरेक्टर एंड मूव्स थ्रू ऑल द नॉवल. बर्ड्स जो हैं दे आर बेसिकली कंपेनियंस ऑफ लॉनलीनेस, जो कि वॉयलेट पालती है जब उसका हस्बैंड उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता. मेमोरी इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट इज ऑल रिटन इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. तो हर बंदे की मेमोरी है जिसमें एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को डेविएट किया जाता है. एंड यूथ वर्सेस एज दैट इज अबाउट डॉकास एंड जो ट्रेस, जिनकी उम्र में काफी डिफरेंस था. So इसके बाद like there we have characterization like Acton, he was Dorcas boyfriend. और उसके बाद Dorcas जो है वो एक clumsy dressed और clumsy personality वाली खातून जो कि एक ऑर्फन थी. सो ऑर्फन एज में इसका भी नाम आता है. उस फिर डगी स्मॉल कैरेक्टर फैलिस जो कि मियाँ बीवी यानी जो और वॉयलेट के दरमियान एक बार दोबारा से उनको करीब लेके आती है और ये दोस्त होती है डॉकस की. गोल्डन ग्रे एक मिक्स्ड ब्रीड जो कि वॉयलेट जो कि जिसके बारे में बताया जाता है कि ये ट्रू बेली जो बताती है कि ये वेरा लॉइस ग्रे और हेनरी लेस्ट्रॉय का बेटा है. वेरा कर्नल वर्ड्सवर्थ की बेटी है जिसको निकाल दिया जाता है उसके इलिसिट रिलेशंस पे. कर्नल वर्ड्सवर्थ एक प्लांटेशन का बिजनेस है और उसे बड़ा ख्याल होता है अपनी इज्जत का, इसलिए वो डिसोन कर देता है अपनी बेटी को. हेनरी इसका रीजन है जो कि ब्लैक है और जो इसकी बेटी के साथ उसका अफेयर होता है. ऑनर जो है एक यंग बॉय है जो कि गोल्डन ग्रे को नोटिस करता है उसके पास और उस केबिन में उसके साथ होता है जब वो जन्म दे रही होती है एक बेटे को, यानी वाइल्ड खातून. मेलवनी वो है जिसके रूम को लव नेस्ट के लिए यूज करते हैं डॉकास और जो. एलिस मिनफ्रेड डॉर्कास की आंटी है जो कि अपनी बहन के मरने के बाद अपनी बेटी को अपने साथ ले आती है. रोज डियर ट्रू बेली की मदर है जो कि ट्रू बेली की डॉटर है सॉरी, जो कि समुद्र जो कि दरिया वेल में कूद के जान दे देती है. जो ट्रेस इज द सेंट्रल फिगर. वॉयलेट इसकी वाइफ है जो कि रोज डियर की बेटी है. ट्रू बेले वो है जो कि वेरा के साथ गई और ये वॉयलेट सेंट्रल फिगर की नानी है. वाइल्ड वो खातून थी जो कि ब्लैक खातून मिलती है गोल्डन ग्रे को. सो दीज वर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले ऑफ द नॉवल सॉरी. नाउ कमिंग टू another very important person, Ernest Hemingway. अब हेमिंगवे जो है इसके इंपॉर्टेंट होने के बहुत सारे रीजंस हैं. क्यों हेमिंगवे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज राइटिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर्स और ही इज राइटिंग अबाउट सो मेनी डिफरेंट फिलोसफीज जो कि उसने दी. एंड एक जो निहिलिस्टिक एटीट्यूड जो कि जिस हमने लास्ट टाइम देखा वेटिंग फॉर गोडो के अंदर. सो वेटिंग फॉर गोडो में जो हो रहा है दैट इज एवरीथिंग जो कि एक ड्रामेटिक फॉर्म में हो रहा है वो यहाँ पे नॉवल में हो रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द पीपल.
सो दिस इज अबाउट हिज लाइफ, क्योंकि इसकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी जो है, इसकी ऑटोबायोग्राफी जो है बेसिकली वो तमाम तर नॉवेल्स के अंदर डिपिक्ट होती है. ही मेक्स श्योर कि ही इज प्रेजेंट इन एवरी लाइन, वो हर एक लाइन के अंदर, हर एक वर्ड के अंदर शामिल होता है. अब वो क्या था, एक कब रिपोर्टर था, एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, बैटल में वुंडेड हुआ, एक अफेयर चला एग्नेस के साथ, फिर एक और जगह पे उसने रिपोर्टिंग की, एक शादी की, उसके बाद उसने पोम्स का एक सेट लिखा, स्टोरीज लिखी, फिर इसका इंपॉर्टेंट नॉवेल्स एंड ऑल्सो राइजेस लिखा, डिवोर्सेस हुई, री मैरिजेस हुई, फेयरवेल टू आर्म्स लिखा, और फिर उसने डेथ इन द आफ्टरनून लिखा, फिफ्थ कॉलम शॉर्ट स्टोरीज, फिर थर्ड डिवोर्स हुई उसकी, फोर्थ मैरिज की इसने, और फिर ओल्ड मैन इन द सी, एंड देन ही गॉट पुलिट्जर प्राइज, शादियां करने पे नहीं बल्कि अपनी उस नॉवेल्स के ऊपर, एंड देन 1954 में नोबेल प्राइज के 4 बीवियां कैसे संभाली. पर नोबेल प्राइज इसको मिला 1954 में. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इसमें देखते हैं कि ही कमिटेड सुसाइड इन 1961. ठीक है, कुछ इसके वर्क्स उसकी डेथ के बाद पब्लिश होते रहे पोस्टमसली. 1961 में सुसाइड कर रहा है. जो इनिशियल उसके वर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल सन आल्सो राइजेस इन 1926 एंड फेयरवेल टू आर्म्स इन 1929, इनमें जो फिलॉसफी वो देता है, जिसमें वो निहिलिस्टिक एटीट्यूड और लॉस्ट जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट देता है, वो चीजें इसकी लाइफ को, यानी बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट करी होती है. इसके ऊपर अपरेंटली हम नहीं देखते कि ये भी उसका शिकार हुआ और इसने सुसाइड कर ली, बल्कि जब ये अपना 1952 वाला एक प्ले लिख रहा है, 1952 में ओल्ड मैन इन द सी, जिसमें कहता है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, और उसके बाद soon after some years after he commits suicide. So this is ironical about his lifestyle. So what was he was a writer himself, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में इसने हर बहुत सारी जगहों पे इसने दिखाया कि इसके कई कैरेक्टर्स जो हैं वो राइटर्स से. ही वाज एन एम्बुलेंस ड्राइवर हिमसेल्फ. तो जो है फर्स्ट नॉवल इसका फेयरवेल टू द आर्म्स, उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे इसको दिखाया गया. टीचर, जो कि टीचिंग भी करता था ये, सो रॉबर्ट जॉर्डन फॉर हुम द बेल टोल्स में एक स्पेनिश टीचर हमें दिखाया गया. हेमिंगवे वाज आल्सो अ बॉक्सर, जो कि सन आल्सो राइजेस में इसका कैरेक्टर रॉबर्ट कोहन एक बॉक्सर के तौर पे सामने आता है. ही वाज आल्सो अ फिशरमैन. गूगल के ऊपर आप देखें बहुत सारी इसकी तस्वीरें मिलेंगी फिशिंग करते हुए. ही लव्ड इट. इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स फिशिंग करते हैं, और फिशिंग इसका एक थीम भी है, एस्केपिज्म का, यानी एक सिंबल भी है, सॉरी. और इसका जो कैरेक्टर है ओल्ड मैन एंड द सी, दैट इज ऑल अबाउट फिशिंग. बुल फाइट लवर था ये, सो इसका सन आल्सो राइजेस इज ऑल अबाउट बुल फाइटिंग. ट्रैवलर था, सो मैसिव ट्रैवल इसने किया, तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर हमें ट्रैवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पे नजर आता है. अब इसके नॉवेल्स पे जाने से पहले लेट मी हियर टीच यू समथिंग के या इसकी जो एंड में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये हैं, और इनके साथ दो चीजें मैं ऐड करूंगा. हेमिंगवे हीरो, which is also known as Cairo, and code hero, which is known as Tutor. So first of all, he talks about lost generation. So lost generation क्या है? Lost generation is an idea, that is a term that he uses for those people जो कि जंग पे गए, जिस तरह आपने फिलिप लार्किन की पोम पढ़ी 1914 कि वो लोग जिस तरह जंग के लिए तैयार थे, और वो कहते हैं कि नेवर सच एन इनोसेंस विल बी सीन बिफोर सीन आफ्टरवर्ड्स, कि ऐसी इनोसेंस कभी नजर नहीं आएगी. सो एज ये जो इनोसेंस की वो जिक्र कर रहा है, वो इनोसेंस वही थी बेसिकली कि लोगों को नहीं पता था जंग पे उनके साथ क्या होगा. जब ये लोग जंग पे गए, जंग पे इतनी बर्बरियत देखी, इतना कत्ले आम देखा, जुल्म देखा, तो इन लोगों को लगा कि हम वापस जा ही नहीं सकते, अब यहीं पे हमने मर जाना है. इन्होंने वहां पे फिर जो है ना फटे चक्कर रख दिए. इन्होंने बेशुमार यानी ड्रग्स ली, इन्होंने अल्कोहल पी, इन्होंने लव मेकिंग की, और ये सब कुछ इतना ज्यादा किया कि ये लोग उस चीज से भी बोर हो गए, यानी प्लेयर गिविंग चीजों से भी इनकी यानी इनका माइंड उठ गया.
फिर इनमें से वो लोग जो मर गए वो मर गए, जो वापस आए उनकी हालत वही थी कि जिस आप इफ यू हैव वॉच द मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन, उसमें क्या होता है कि एक ओल्ड जेलर, एक ओल्ड कैदी होता है जो कि सारी उम्र उसने जेल में गुजारी, बड़ी इज्जत होती है उसकी, नाम होता है, क्योंकि उसका कंडक्ट सारों से बड़ा अच्छा होता है, एंड ही इज वर्किंग इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में वो क्या करता है, किताबें लेता है, मुख्तलिफ कैदियों को देता है, फिर वहां से लेके वापस उनको कैटलॉग के तौर पे वापस एडजस्ट करता है। एवरीबॉडी लव्स हिम, रिस्पेक्ट्स हिम, सिंस ही इज ओल्डेस्ट फेलो देयर। तो उसके एक दिन, एंड ही इज हैप्पी इन द जेल, ही वांट्स टू लिव देयर, क्योंकि वो उसकी लाइफ होती है, उसकी फैमिली बाहर तो है नहीं, सब मर खप गए होते हैं। So once he gets a letter that he is free now, he has to go outside. जब वो बाहर जाता है अपने प्राइवेट कपड़े पहन के, अपना बैग उठा के, कुछ पैसे जो उससे मिलते हैं उसकी सर्विसेज के एवज, तो वो एक होटल में जाता है, क्योंकि उसका घर तो होता नहीं है। वहां पे वो 1 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, उससे टाइम ही नहीं गुजारा होता, उसको समझ नहीं आती मैं बाहर करूं क्या, तो वो पंखे से लटक के खुदकुशी कर लेता है। सो द सेम हैपेंड विद दीज पीपल, जो कि जंग से वापस गए, 4 साल गुजर चुके थे, सब कुछ बदल चुका था, तालीम का निज़ाम बदल चुका था, लोग इनसे 4 साल आगे निकल चुके थे, बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुके थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी जो इन 4 सालों में अवाम सीख चुकी थी, इनके रिश्तेदार इनके बगैर रहना सीख गए थे, इनके लिए लाइफ में कुछ रह नहीं गया था, तो मोस्ट ऑफ देम किल्ड देमसेल्व्स। तो ये वो लोग थे जिनको लॉस्ट जनरेशन कहा गया। दैट इज टेकन फ्रॉम गर्ट्रूड स्टेन्स वर्क, जिसमें कहता है वो कि वी आर ऑल लॉस्ट जनरेशन, जहां से हेमिंगवे ने इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया। और निहिलिज्म क्या है, वो बीमारी जिससे ये लोग सफर कर रहे थे, यानी जो कि हमने वेटिंग फॉर गॉडो में भी देखा कि द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, दुनिया मीनिंगलेस है, मीनिंगलेसनेस का शिकार है हर बंदा। फिर इसमें ऑटोबायोग्राफी बताता है वो अपनी, फिर वॉर एंड लव एज पैरेलल थीम्स, इसके हर नॉवल में वॉर और लव पैरेलल थीम्स के तौर पे चलते हैं। ओल्ड मैन एंड द सी इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है, जिसके अंदर ये चीजें नहीं है। हॉरर्स दिखाता है वो वॉर के। अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज, why don't you guys understand what's going on? आप सारे अच्छे भले मोशन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सो हॉरर्स ऑफ वॉर, लव एंड वॉर एज पैरेलल थीम्स, की वॉर भी चल रही है और लव अफेयर्स वो भी हैं। हॉरर्स दिखाए गए वॉर के, कि कई दफा जो मेन कैरेक्टर है उसके जिस्म के ऊपर निशानात रह जाते हैं जंग के, या फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है जिसकी वजह से उसे जंग याद रहती है। देन देयर इज ऑलवेज हेमिंगवे हीरो, जिसे टायरो कहा जाता है। हेमिंगवे, इसमें 2 तरह के हीरो होते हैं इसके हर नॉवल में। एक हेमिंगवे हीरो जिसे टायरो कहा गया, जो कि एक नॉर्मली, यानी नॉट ऑल द टाइम बट नॉर्मली, ही इज इमेच्योर, ही इज यंग, ही इज वॉलंटियर पर्सन, वॉलंटियर सोल्जर, ही इज नॉट प्रोफेशनल, और ये वो है जिसके अंदर कुछ वो सारी, यानी एक आदात कह लें, जो कि एक नौ सिखिए में या एक नोवाइस, एक बिगनर के अंदर होती हैं, कुछ बुरी आदतें भी हैं। उसके मुकाबले में एक और कैरेक्टर उसके नॉवल के अंदर होता है जो कि उसका बरक्स होता है, जिसे हम कोड हीरो कहते हैं। कोड हीरो नॉर्मली, यानी नॉट ऑलवेज बट नॉर्मली, ही इज एजेड, he is skilled, he is professional, he is dedicated, he is a disciplined person, और वो वाकई मेच्योर होता है। जिस तरह आप ओल्ड मैन एंड द सी में देख लें कि जो मैनलिन है वो उसका हीरो है, लेकिन उसका कोड हीरो जो है वो ओल्ड मैन खुद है, जिसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली इसका जो कोड हीरो है वो उन बुराइयों से पाक होता है जिनमें इसका मेन हीरो फंसा होता है, या जिस तरह की थिंकिंग मेन हीरो की है। अब एक क्विक व्यू लेते हैं कि अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये इसकी बिल्कुल लाइफ के ऊपर बना हुआ है कि जो फेडरिक हेनरी है ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, और इसको जंग में चोट लगती है, तो इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां पे उससे कैथरीन बैकरले नामी नर्स से प्यार हो जाता है, जिसको एग्नेस के तौर पे हेमिंगवे की लाइफ में, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी, कैथरीन बैकरले उससे रिप्रेजेंट कर रही है। खैर, उनके आप बीच में जब ये नर्स उसे ट्रीट करती है तो उनके बीच में रिलेशन बनता है, और ये गेम ऑफ सेडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो कि शुरू में तो हेमिंगवे जो है, यानी जो हेनरी है, वो उसके बारे में सीरियस नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी जुदाई के बाद जब वो दोबारा वहां पे जाता है तो ये सीरियस हो जाता है उस हवाले से उसकी मोहब्बत में।
खैर इन दोनों का जो मोहब्बत है, जो अफेयर है, वो चलता रहता है। मीनवाइल ये होता है कि जंग जो है वो बड़ी सीरियस हो जाती है, बड़े लोग आसपास मरना शुरू हो जाते हैं, तो हेनरी जो है वो जंग से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मीनवाइल उसमें फिजिकली इंजरीज भी होती हैं उसे, और उसके साथ साथ जो उसका रिलेशनशिप है कैथरीन के साथ वो इंटेंस होता जाता है, इंटेंसिफाई होता जाता है। तो फिर एक टाइम पे आके हेनरी डिसाइड कर लेता है कि जो इसका टाइटल है उसकी पहली कॉनोटेशन कि फेयरवेल टू द आर्म्स, कि वो आर्म यानी आर्मी, हथियार, उनको छोड़ देगा। तो वो उनको छोड़ देता है, खुदाफिज कह देता है, और उसके बाद वहां से निकलता है कैथरीन के साथ। मीनवाइल कैथरीन इज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट होती है, और ये वहां से दोनों एक बोट में बैठ के स्विट्जरलैंड की तरफ जाते हैं, और वहां पे बोट दे के, कुछ पैसे दे के उसमें एंटर हो जाते हैं। कुछ टाइम ये वहां पे अच्छा गुजारते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि इसको गिल्ट भी होता है हेनरी को कि उसने अपने साथियों को छोड़ दिया अकेला जंग में और खुद यहाँ पे आ गया। लेकिन एटलीस्ट ही इज हैप्पी के ही इज हैविंग अ पीसफुल लाइफ। फिर ये कि जब स्प्रिंग आती है तो उसमें लाइक दे आर मोर क्लोजर, और कैथरीन शी गोज इनटू लेबर, और उसमें ये जो इसका केस होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो स्टिल बॉर्न को जन्म देती है, यानी मुर्दा बच्चा पैदा होता है, और उसी रात कैथरीन को ब्रेन हेमरेज होता है और शी डाइज। हेनरी उसके पास ही होता है जब वो मरती है। सो वो फिर बारिश हो रही होती है और वो वापस उस बारिश में चलता हुआ होटल आ जाता है। सो ये है सेकंड कॉनोटेशन कि फेयरवेल टू आर्म्स ऑफ कैथरीन, यानी इसके टाइटल के दो मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट वी हैव सन ऑल्सो राइजेस। सो सन ऑल्सो राइजेस रॉबर्ट कोहन और जेक बर्नीस के बारे में। जेक बर्नीस हमारा मेन कैरेक्टर है। जेक बर्नीस जो है उसके साथ जंग में हुआ होता है कि जंग में उसके पास एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ही बिकम्स फिजिकली इम्पोर्टेंट। उसकी जो गर्लफ्रेंड है ब्रेट एशले, वो उसे प्यार करती है, लेकिन डेफिनेटली ड्यू टू हिज इम्पोर्टेंसी दे कैन नॉट मैरी। तो ब्रेट एशले इज हैविंग सो मेनी लव अफेयर्स एंड स्कैंडल्स। सो वो जो है मोहब्बत करती है जेक बर्नीस से। वो एक काउंट के साथ भी है, उसके कुछ और फ्रेंड्स भी हैं। फिर वो रॉबर्ट कोहन के साथ भी एक हफ्ता गुजार के आ जाती है, और फिर माइक कैम्बल से उसकी शादी होने वाली है। और उसके अलावा ये जो है लाइक एक बुल फाइटर रोमेरियो, उसके साथ भी कुछ रातें गुजार बैठी होती है। सो हाईली डिफरेंट कैरेक्टर, जस्ट लाइक वाइफ ऑफ बैथ फ्रॉम चौसर। सो इसमें दिखाया गया कि इनके लिए इस यानी जो है लव मेकिंग, ड्रिंकिंग, इससे बढ़ के जो एक सोसाइटी है इसके पास कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू फॉरगेट द वॉर समहाउ, स्पेशली जेक बर्नीस हिमसेल्फ, जो कि कभी चला जाता है फिशिंग पे टू फॉरगेट थिंग्स। कोहन का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया जो कि ज्यू है लेकिन बॉक्सर है, तो वो भी हेमिंगवे से इंस्पायर्ड, क्योंकि हेमिंगवे वाज हिमसेल्फ अ बॉक्सर। इसमें दिखाया गया कि पेम्प्लोना में फाइनली ये इकट्ठे होते हैं स्पेन में, जहाँ पे बुल फाइटिंग होती है। तो बुल फाइटिंग में इन सबका इंटरेस्ट होता है। सो वहां पे ये एक मोन्टोया, जो कि एक होटल जिसका ओनर होता है, वो सिर्फ बुल फाइटिंग लवर्स के लिए होटल मुख्तस होता है, ये सारे वहां पे ठहरते हैं और फिर ये बुल फाइटिंग देखते हैं। तो वहां पे एक बुल फाइटर होता है जिसका नाम रॉबर्ट पैड्रियो रोमेरियो होता है। तो जब एक हफ्ता उसके साथ गुजारने के बाद कोहन के साथ ब्रेट एशले उस पर तवज्जो नहीं देती और वो रोमेरियो के साथ हो जाती है, तो रोमेरियो रॉबर्ट कोहन को बड़ा गुस्सा आता है। तो वो बॉक्सर होता है, तो वो आके रोमेरियो को मारता है, और अगले दिन उसने बुल फाइट करनी होती है, लेकिन ही गोज एंड ही फाइट्स। सो वो एक कोड हीरो की तरह लड़ता है और जाके फेस करता है मुश्किलात को, जो कि मेन हीरो नहीं कर सकता, जो कि हमारा मेन हीरो जैक बर्नीस है। बहरहाल उसके बाद व्हेन दे आर डन विद दैट, सो फाइनली ब्रेट एशले उसको छोड़ देती है, ये कह के कि वो उससे एज में बहुत छोटा है और ये उसको उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। एंड फाइनली बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर एंड दे गो टू देयर डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड देन वी कम टू नो के जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर हुम द बेल टॉल्स, थर्ड एंड फाइनल वन। सो फॉर हुम द बेल टॉल्स मींस कि किसकी मौत का वक्त आ गया या किसका मरने का टाइम आ चुका है। दिस इज व्हाट इट रियली मींस। दिस इज आल्सो अबाउट वॉर, ये जो स्पेनिश सिविल वॉर के हवाले से है, जिसमें रिपब्लिकन्स की साइड पे रॉबर्ट जॉर्डन है और दूसरी तरफ फॉशिस्ट्स होते हैं। फॉशिस्ट्स कौन है? ये
फस्तायत ये डिक्टेटरशिप की तरह निज़ाम होता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये डिक्टेटरशिप तो होती है, लेकिन इनके जहन में ये होता है कि हम नस्ल में सबसे अच्छे हैं, जैसे जर्मन के जहन में था कि जर्मन नस्ल सबसे अच्छी होती है, और ये बाकी नेशंस को डेरोगेटरी निगाह से देखते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये एक जो इस वॉर के अंदर, ये स्पेन की तरफ से रॉबर्ट जॉर्डन लड़ने आता है। रॉबर्ट जॉर्डन एक टीचर होता है जो कि एक लाइक ही इज नॉट प्रोफेशनल बट स्टिल ही टेक्स पार्ट ऑफ वॉर। वहां पे वो एक गोरिल्लास का बैंड ज्वाइन करता है, और ये गोरिल्ला वॉर होती है, छुप छुपा के वो लड़े होते हैं। वहां पे इसको एक खातून मिलती है जिसका नाम मारिया होता है, और वो एक विमेन है जिसको बहुत सारे लोगों ने रेप किया होता है, और ये एक तरह से कैदी होती है। सो इसके साथ इसकी एक अटैचमेंट बन जाती है, दोनों एक दूसरे के बड़े करीब आ जाते हैं। सो लव एंड वॉर गो एज पैरेलल थीम इन दिस एज वेल। सो इनका मेन काम होता है कि इन्होंने ब्रिज को ब्लो करना है ताकि दुश्मन की री इन्फोर्समेंट वहां से ना आ सके। सो कई दफा इसके अपने साथ इसको धोखा दे देते हैं, कई दफा वो इसके साथ मिल जाते हैं, और मीनवाइल काफी टाइम ये मारिया के साथ भी गुजारता है, जिसपे लाइक ही इज हैप्पी टू बी विद हर, और ही वांट्स टू गो बैक विद हर टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। पर ये जब ब्रिज को एक्सप्लोड करने जाता है तो ये होता है कि ब्रिज को एक्सप्लोड करने के चक्कर में ही हिमसेल्फ इज लाइक हर्ट, और उस हर्ट होने की वजह से वो उसकी जो अपनी टांग है वो टूट जाती है, एंड ही कैन नॉट रन। ये बाकी सारे मेंबर्स को भगा देता है वहां से, और खुद ये वहां पे पड़ा रहता है, एंड वी एज्यूम दैट ही इज शॉट डेड, मर जाता है ये। सो फाइनली ही एंड्स अप डाइंग। सो इसमें भी दिखाया गया कि वॉर के हॉरर्स हैं, और वॉर ने उसके पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा, एंड एवरीवन डाइज लाइक रेस्ट ऑफ द हीरो। ये एक ट्रेजिक एंड है जिससे वो मिला। सो वी आर जस्ट टोल्ड कि ये एंड जो है दैट इज ऑलवेज ट्रेजेडी विद हिज नॉवेल्स। सो detailed summary will be sent to you. You can read it on your own. Okay, next we have yes, that is a disturbing novel, Sun Also Rises. Okay, ji. So next, what we are doing now is I'm sending you the link of the test. You can solve it. Tomorrow and the next day, we are going to discuss South Asian writers, and then we'll have the end of class from my side. Afterwards, if you guys are willing, as I said in the last class, you can come up with your different ideas. So I'm going to post the link soon.